Every woman is a story written by strength, sacrifice, and emotions. In this podcast, we celebrate that journey of joy, emotions, chaos, doubts, and quiet moments of grace. Being a woman is like carrying world within to nurture, to rise, and to build. Motherhood doesn't come with a manual. It comes with courage and strong determination and endless love for the little one. It's not power, it's patience and purpose. Assalamu alaikum, Sabah. Welcome, Sam. Let me tell you something about motherhood. Sure. It's a beautiful journey और इसमें हम सब change होते हैं. Empowering and proud And tag. exciting. Exciting as well. Exciting. लेकिन इस सबके साथ जो है ना, इस जर्नी में आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हीलिंग नहीं होती तो आपको पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो सकते हैं, आपकी बॉडी वीक हो सकती है, आप मेंटली वीक हो सकते हैं। और वो क्यों होता है सबा? क्योंकि हम लोगों की बातें सुनना शुरू कर देते हैं। हम फिजिकली एक वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड से होते गुजर रहे होते हैं, हैं। हम हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे होते हैं, हम Exactly. सोसाइटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, हमें सेल्फ डाउट हो रहा होता है, देयर आर चेंजेस व्हिच नेवर हैड हैपेंड इन आवर लाइफ। Yes. और एक वो गर्ल who is very particular about her physique, her beauty, her face, everything suddenly changed. You have patches on your face, your body is plump. चाहे आप जितना इसके बारे में पढ़ लें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंस आता है, बट प्रैक्टिकली जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिमेंबर दैट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, नो मैटर व्हाट, गिव योरसेल्फ अ टैप दैट यू आर अ मदर एंड यू हैव सर्वाइव्ड अ डे, 2 डे, 3 डे। गिव योरसेल्फ दैट लिटिल एप्रिसिएशन एवरी डे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गिव्स सो मच पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपको इतना अच्छा फील होगा ना, टू ऑल द मदर्स, to all the homemakers. I'm telling you, you guys are amazing and you're doing a wonderful job. कोई भी नहीं बन सकता आपके बच्चों की माँ, सिर्फ आप हैं। तो जितनी जिंदगी है ना, उसमें अपने बच्चों को बहुत प्यार दें, पॉजिटिविटी दें, मेमोरीज बनाएं। In today's episode, we are going to dive into emotions, the struggles, and the strength behind the title of a mom. Stay tuned Keep watching. and sharing. Let's talk about the most beautiful day of your life. The day you come to know that You're you're expecting. expecting. Oh, it's amazing. It's Yeah. so beautiful. Acha, Especially your first one. exactly. Acha, again, for some women, it is little disturbing because they are not ready or prepared. ठीक है? You need to be ready for it. You need to be mentally ready for it. हाँ. तो it comes as a surprise. तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज प्लीज अपने आप को प्लीज उस डिप्रेशन में नहीं डालना, बिकॉज I understand the feeling where you're surprised and then you're not. It's not like that you don't want to welcome a child. It's a big surprise for you. Yeah. You know, It's a एक big- surprise के लिए आप ready होते हैं. It's हाँ. a different kind of a joy that you're ready. You're waiting for it. और एक होता है that you're not ready. You're not waiting for it and it's हाँ. there. तो दोनों situations में अपने breathe करें, relax होएं, शुक्र का नफल पढ़ें, Alhamdulillah kare, and then see the journey will begin for you. And it will be a roller coaster with a lot of ups and downs. तो ups में happy हो जाएं, और hormones जो है ना, they are so vital in it. Now that is the time when your body is changing. ये वो टाइम है जब आपका बॉडी चेंज होने शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स इतना प्ले अप करते हैं, सारी जिंदगी एक तरफ और मदरहुड की प्रेगनेंसी की जो टाइम है ना वो एक तरफ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, आपके अंदर एक जॉय आता है, एक हैप्पीनेस आती है इफ यू आर रेडी फॉर इट, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके अंदर ये इमोशंस एकदम से नहीं आएंगे, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। ऑक्सीटोसिन बॉडी में बड़ा रिलीज होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। The biggest surprise is when you open the paper and it says a positive, it's so good feeling. Yeah. Absolutely. So you should cherish it. और again अपने आप को आप उस जर्नी के लिए रेडी कर चुके होते हो, that's why you are more. No, but Allah has given you like time. It's Yes. like 9 months in between you and your child. Yes. You know, so there's And there is ample always time a to reason. process. Exactly. you अल्लाह know? क्या करते हैं कि वो gradually एक आपका bond build होने Yes. शुरू हो जाता है with your baby. So let's talk about first trimester, Sabah. Okay, so सबसे पहले ईशा कंसेप्शन पे ना मैं कहना चाहूंगी गर्ल्स को that don't freak out. Yes. There are 100 ways to research about what is going to happen to you. So just don't freak out. Yes. Everything is laid out. Yes. Yes. आप इंटरनेट पे जाओ, आजकल AI आ गया है, गूगल है, यूट्यूब है, हर
प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पैनिक की जरूरत नहीं है, नहीं है। परेशान नहीं होना, ठीक है, सबसे पहली चीज नहीं होना। शुक्र करना है, नफल पढ़ने। I was 22 when I conceived, so I was in a panic state. So Okay. I can totally relate to the house situation. And then I didn't had family around, and then a lot of things were going on. तो and then आपका cultural change है, आपकी जगह change है, और कितनी हमारी पाकिस्तानी खवातीन जो कनाडा, अमेरिका, यूके जाती हैं और वहाँ कंसीव करती हैं, हाँ, उनके and they are लिए alone. I can हाँ, I can exactly feel. आज के दिन देखो, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, exactly. आप There was no ऑनलाइन WhatsApp then 14 एवरीथिंग years इज ago. अवेलेबल, Yes, इवन yes, मदरहुड पे बुक्स yes, हैं, yes, यू कैन रीड देम, yes. और And इट्स वेरी इजी, and वेरी in, and इजी. in those countries they provide you with the packet, because I never knew and I never had that much of exposure 15 years ago, Sabah. हाँ, So there was no WhatsApp. तो हाँ. और फिर ऑब्वियसली जितना आप कम्युनिकेट करते हो उतनी आपकी नॉलेज होती है. एंड देन अगेन एक और बात हम करेंगे इस बारे में. If you are shy, you won't talk about it. And if you don't talk about your pregnancy and how it is going and how it will be, you will not get the knowledge. Nowadays you can, right? I'm talking 15-20 years back. हाँ. जब आपको रिसर्च करना भी मुश्किल लगता था, और जब आप और इसके बारे में बात I करना भी did a lot मुश्किल of लगता है. research. Yeah. It's like 10 years back. So yes. I did a lot of research the day I came to know that I'm going to be a mom, you know. Yes. तो अपनी अपनी घर पे बैठ के जैसे मैं बहुत रिसर्च करती थी, बहुत पढ़ती थी, और जब यू नो आई बिकेम मदर, सो आई यूज्ड टू डू थिंग्स एंड आई यूज्ड टू टेल माय सिस्टर्स एंड दे आर लाइक हाउ डू यू नो दैट, तो मैंने कहा आई जस्ट Yes. गूगल. 15-20 years ago things were different, and now things are अब तो different. बड़ी एडवांस्ड And हैं, अब even तो few years back as well, yes, you're right, things were different. And once a mother is more confident to be a second time mom and a third time mom. ईशा, इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नो डाउट मोर चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, Yes. सो ऑन, ठीक है. तो लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपकी चैलेंजेस होते हैं ना, वो हर प्रेगनेंसी के साथ Different चेंज हो होते जाते हैं. हैं. Exactly. Each birthing experience is different. इवन जरूरी योर नहीं- बॉडी body, फिजिकल exactly. कैपेबिलिटी इज is डिफरेंट, different. ठीक है. So, but remember, you need to cherish it. Remember, हमने इस चीज के बारे में बार बार बात करनी है. Stay positive. Be happy. That time will never come back. I know it will go slow, but it will surely pass through. और पता है इसमें एक टिप क्या है, आप क्या करें, आप सिर्फ अपना माइंडसेट में ना एक बात याद रखें. नो मैटर आज आपके हालात कैसे हैं, आपका माइंडसेट क्या, आप एक्सेप्ट करें नहीं करें, कि जो 9 months ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, कभी वापस नहीं आएगी. Exactly. और किसी इसको बहुत ही आप समझदार बंदे ने आपसे ये बात की. फिर आपके बाद में आपका मूड भी ठीक हो जाता है, हालात वाकयात भी सेट हो जाते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि अगर मैं वो टाइम ज़ाया कर देती, मैं उसको एंजॉय ना करती, चेरिश ना करती, तो फिर मतलब मेरी वो मेमोरीज नहीं होती. ऐसा व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड, I decided to first quit my job. Like we decided, we both decided, me and my husband decided कि हम लोग I will quit my job. One thing, I will chill, relax, and prepare for the baby. And trust you me, that was like the 6 months. You know, I worked for like 3-4 months in the beginning, और जो 6 months मैंने off किए थे, that was like the best and the most amazing फ्री टाइम ऑफ माई लाइफ. मुझे Yes. मतलब सारा दिन में समझ नहीं आती थी, मैंने सब कर दिया कर और दिया, दिन time खत्म है. नहीं हो रहा. हाँ. मेरे पास इतना टाइम है. मैं मतलब आई यूज्ड टू लाइक प्लान अ लॉट, और फिर उसमें एक्साइटमेंट का एक लेवल था, Yeah, ये बिकॉज तो- हम लोगों की फैमिली में ना ऐसा था कि देयर वाज अ ग्रैंड मदर हु वाज लिविंग विद अस, और वो हेड ऑफ द फैमिली थी. और तो उस फैमिली में से जो भी मिलने हमारे सिटी में आता था, वो उनके पास जरूर आता था, और इतनी ज्यादा रौनक रहती थी. Yeah, कोई ना माशाल्लाह. कोई उनकी I बेटियों में से remember. वहीं पे होता था. मिलने वाले आ रहे हैं एवरी डे, 2-3 families are like आई व्हेन वी लॉस्ट हर. तो उसके बाद ना हमारे घर में सन्नाटा सा होना शुरू हो गया, खामोशी. खामोशी होना शुरू हो गई. एंड इमीडिएटली यू नो आई वाज ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड. और अल्हम्दुलिल्लाह. बस घर में उस खामोशी को रौनक. ख़त्म करने के लिए मुझे था कि रौनक हो, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह कोई बोरिंग बच्चा ना देना, कोई ज़रा एक्साइटिंग सा बच्चा देना. और अब जो मेरी डॉटर है, शी इज़ सो माशाल्लाह. टॉकेटिव, माशाल्लाह. शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी. एंड माशाल्लाह. जब मैं कहती हूँ ना बस कर दो, आपने मुझे बहुत तंग किया हुआ है और परेशान करके रखा हुआ, कहती है
आपने तो ऐसी मांगी थी नोटी सी। माशाल्लाह Because I told her all the stories, she said आपने तो नोटी सी मांगी थी, मैं वैसी आ गई हूँ, तो आगे ये अब तो आपकी एक्सेप्ट करे दुआओं की वजह से तो हुआ है। हाँ ऐसे एंड मैं माशाल्लाह कहती हूँ वाकई ये ऐसा ही है, और मैंने ऐसी ही बच्ची मांगी थी जो जरा सा लाइवली हो, बातें करे एंड ऑल। हाँ तो I gave birth to a very healthy, mashallah, complete, sane child after 9 months. And I was told अल्हम्दुलिल्लाह completely otherwise. तो आपको आपका डॉक्टर जो भी कुछ कह रहा है ना, आपने उनकी बात नहीं सुननी. जस्ट ट्रस्ट योर गट. जिस अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है ना, पैदा करने के लिए, पालने के लिए, वो अल्लाह आपको हिम्मत भी देंगे, वो अल्लाह आपको समझ भी देंगे और आपको ताकत भी देंगे कि आपने इसको कैसे करना है. यस Just trust your gut, get along with this journey, everything is going to fall in places. ओके सो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर yes, now let's talk about the first. नॉशियस हो सकते हैं बहुत sick nauseous भी हो हो सकते हैं। सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस Yes. vomiting is part of it. Mood swings, we'll talk about it because क्या होता है कि hormonal changes अभी start हुए. So obviously something which is not in your body is now in your body. You will have a lot of mood So swings as citrus well. help Yes. and juices help. Ginger tea helps, ginger biscuit helps. A So lot of many things. teas. A lot of हाँ, things. Yes. peach tea, calmine Make sure, tea. yes, make sure stay hydrated. Yeah. Sleep well. Give yourself slow days. It's fine if you're working. It's fine. Let everybody know it's fine, so that your first 3 months are comforting. Decide whether you will have the full-term pregnancy or not. Sometimes naturally it gets terminated as well. That's why you should not worry if you're not telling anybody. So first 3 months, give yourself that time and keep yourself slow and easy. Because the baby is on the go. कंसेप्शन की बात होगी ईशा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर ली. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ट्राइमेस्टर. Absolutely. ठीक है, इट्स कॉल्ड द गोल्डन पीरियड इन द प्रेगनेंसी. Yes. डू यू एग्री टू दैट? Yes, I totally agree. Because इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी होती है, चेंजेस आ चुके होते हैं और अब ग्रोथ का सिलसिला शुरू हो रहा होता है. तो इसमें नॉशियस आप कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते. Some people say that, some women say that हमें पता ही नहीं चलता that even we are expecting. और ये वो पीरियड होता है जिसमें Energy आप होती है. शॉपिंग कर सकते हैं. यस इसमें एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है चेंजेस की. इसके अलावा आपकी ऑब्वियसली बेबी मूवमेंट भी है, बेबी ग्रोथ भी है. साथ ही साथ आप अपने जितने भी काम है ना, आप चेकलिस्ट बनाना. इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड दैट यू आर गेनिंग, you need to focus on. But you don't gain that much. You don't, but some ladies they do. अभी थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे. Exactly. उसमें तो within days आप gain करते हैं ना. Body is changing and then after 3 months you know that you are in a phase of continuity. तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं gain का element आता है. थोड़ा सा वो चीजें जो आप पहले कर सकते थे, आपको थोड़ा feeling आती है आप नहीं कर पा रहे हो, which is very slight change. I would say the last trimester is the big one. आपने अपनी walk, अपनी diet, अगर swimming करते हैं, अगर yoga करते हैं, make sure that you're doing any form of exercise. It's a must. I don't know यहाँ पे डॉक्टर्स कितना इस चीज को encourage करते हैं नहीं. Unless you have a situation where you have to have a bed rest, please do have. I'm not saying कि यहाँ हर पे बंदे ईशा ने पब्लिकली नहीं encourage किया जाता. Reason being, because I was a swimmer and I was not allowed to go to a public swimming pool. One, you catch infections really quick. Second, when you're swimming, there are a lot of people around you. फिर तो आपको एंटीनेटली स्विमिंग क्लासेस दी जाती हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज. तो वो अगर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, अगर कोई ऐसी चीज है ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक लेडीज टाइम है अलग हाँ. हमारा, पर उसके लेकिन अंदर लेडीज के particularly साथ गर्ल्स भी हैं, बच्चियां भी हैं, फिर वो डाइविंग हो रही होती है, जंपिंग हो रही होती है, और आप ऑलरेडी एक फेज में होते हैं ना, तो डॉक्टर्स डू नॉट रिकमेंड और दे फॉरबेड मी कि पब्लिक एरिया से भी आप दूर रहें, कि आपको आप जल्दी इम्यूनिटी जो लो होती है आपकी, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है. और फिर वो इन्फेक्शन जो माँ को होता है ना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वो फिर बेबी कैरी करता है, इसीलिए अलाउड नहीं होता. हम लोगों को यहाँ पे बोलते हैं कि आप वॉक करो, ठीक है, स्टेयर्स उतरना चढ़ना कोई मसला नहीं है, आप अच्छा सा वॉक करो, स्टेयर्स उतरो चढ़ो, मेडिटेशन करो, योगा करो, योगा क्लासेस हैं. यू शुड स्टे क्लोज टू द नेचर एज वेल. आई ऑलवेज फील दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना आप नेचर के करीब रहते हैं ना, जितना आप ग्रास में हैं, वॉक करने हैं ना, वॉक है, आप सनसेट्स देख रहे हो, सनराइज देख रहे हो, आप ये जो नेचुरली जितनी भी आपकी चीजें पहाड़ों में घूमने चले जाएं. एग्जैक्टली, सी एक्सप्लोर द नेचर एज वेल. ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, इसमें डू योर बेस्ट विद योर चेकलिस्ट. जितनी भी शॉपिंग है, जो भी आपकी ज़रूरी काम है, ज़रूरी मुलाकात है, कोई और चीज़ें हैं, कमिटमेंट्स हैं, ट्राई टू डू दैट एज वेल. बिकॉज उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर.
you are 3 months away from meeting your child. That is it. Pain worth, discomfort worth, Yeah. sleepless nights worth. और आप इस 3 months में अपने still walk continue रखें, exercise किसी form की आप जरूर रखें, start meeting with people who are positive, be it in your family, be it in your वो तो friends. throughout आप करें, लेकिन जो लास्ट मंथ है ना सबा, आई फील उसमें आप ड्रेन की फीलिंग में आ जाते हो, बिकॉज द वेट ऑफ द बेबी इज देयर. ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बेबी इज ग्रोइंग. को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, आपकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है अब तक, एंड इट्स ऑल रेडी टू ब्रिंग द बेबी टू द वर्ल्ड. सो स्टार्ट मेकिंग योर हॉस्पिटल बैग. Start writing down your journals. Start noting what you need to do afterward. Make sure that you're taking good sleep, you're eating well, you're drinking enough, stay hydrated. ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत मेजर रोल. पता है क्या, मदर्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग बर्थ भी, और बर्थ से पहले भी. जो लास्ट 10-15 डेज होते हैं ना, दे गेट एग्जॉस्टेड. व्हाई? बिकॉज वो नींद नहीं ले रही होती, नींद आ नहीं रही होती, नींद आ नहीं रही होती, तो उसमें भी खाया आप, जा नहीं रहा होता आप आपसे. अपने कंफर्ट देखें. जैसे कि यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पिलोज प्रोवाइडेड, ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिससे आपकी पोजीशनिंग इजी हो जाती है. एंड इस पॉइंट पे आई वुड से पार्टनर्स प्ले अ मेजर रोल. Start helping your wife as much as you can. Tying a simple shoelace is difficult for her. Changing another baby is difficult for her. छोटी छोटी बात पे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. And the mood swings. The mood swings are again there. Welcome hormones. Again, we welcome you because hormones दोबारा से आपके साथ रहते हैं throughout. लोगों को ना लास्ट ट्राइमेस्टर मुश्किल लगता है, एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरे डिस्कस भी, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर और बर्थिंग एक्सपीरियंस बहुत मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इजी रहते थे. द रीजन बीइंग, चैलेंजेस होते हैं नो डाउट. द रीजन बीइंग कि मैं बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट करती थी अपने आप को. सुबह उठ के कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट सो क्लोज टू मीट माय बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आई विल डू माय बेस्ट, व्हेनेवर आई एम एग्जॉस्टेड आई विल रेस्ट. And having more 2 children with the third time, I was so energetic. Reason being, नींद अच्छी ले रही थी, अपने बच्चों को भी देख रही थी, but I was trying to tell them as well कि mama can't do this because of this reason, right? I had staircases, so I remember up and down, and I used to say कि you know, जितना आप actively अपने आप को positively लेके जाएंगे, ठीक है, आपसे तेज तेज सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही, it's fine, take small steps. Just remember that these 3 months will go like this. If you keep on journaling, if you keep on checking your list, every day का task रखें, अपने आप को एमलेसली नहीं रखें उस टाइम में, क्योंकि बहुत सी वर्किंग लेडीज होती हैं सबा, दे क्विट द जॉब एज वेल. मैटरनिटी लीव शुरू हो जाती है. नो, मैटरनिटी लीव यहाँ पे आई हैव 8 नो month आइडिया. के बाद नहीं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा, मैटरनिटी लीव क्योंकि इतना लंबा स्पैन नहीं देते. ठीक है. 40 डेज की लीव होती है, तो वो लेडीज God. यूजुअली यूटिलाइज करती हैं टुवर्ड्स द एंड. एंड अगर किसी को लास्ट वीक मुश्किल लग रहा है तो वो लास्ट वीक ऑफ लेती है. Otherwise, I have seen people so that's giving another birth cultural shock. the first day of their maternity leave, ताकि फिर वो कहती हैं बेबी के साथ ज्यादा टाइम हम गुजर लोग सके. वो कर लें. क्योंकि बैक देन मैं थोड़ा पीछे की बात करूँ, तब द डे केयर कल्चर भी पाकिस्तान में आम नहीं था. आज डे केयर कल्चर है, जिसकी वजह से मदर्स थोड़ा सा रिलीव्ड है कि बेबी को वो साथ भी लेके जा सकती हैं. लेकिन तब इतना व्हेन आई वाज वर्किंग देयर वाज नो यू नो डे केयर कल्चर. फिर जो डे केयर का बेबी है ना, वो सारे इन्फेक्शंस कैरी करता है, वो बीमार रहता है बहुत ज्यादा, वो चिड़चिड़ा ज्यादा रहता है. Our institutes and wherever women are working, they should give at least 6 months of maternity leave. I don't know why it's not here. It's not like, and it's very sad common. because the thing is that is the time you're healing, you're recovering, at the same time you're having that bond with a child, because you need that time with your child, you know, and you need time to rest as well. यहाँ एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए. एक बहुत हमारा यहाँ पे मशहूर ब्रांड है मारिया बी, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी देयर रील. दे शेयर्ड देयर इनसाइट के जो उनकी वर्कर्स हैं, जो उनकी टीम है, they allow their babies to come along with the mother really after good. maternity leave. She allows कि आपके बच्चे आपके साथ आ जाएं, mothers are working and the kids are playing. उन्होंने play areas बनाए हुए That's so जगह जगह, beautiful, so amazing. और it's so nice. और ये खाली एक एग्जांपल ये था कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको एम्पावर किया जा रहा है कि हाँ जी ये बच्चा ले आए. स्कूल्स हैं हमारे, brand Alhamdulillah, schools, the leading good. brand schools, they are offering daycare That's facility amazing. for teachers, और उनकी फिर बच्चों की फी concessions. तो ये बहुत अच्छा अच्छी positive एक points भी positive हैं, point है. alhamdulillah. अच्छा,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बर्थिंग टाइम आ जाता है। अच्छा, यहाँ तो पार्टनर अलाउ ही नहीं है ना वो आपके अल्ट्रासाउंड में हाँ, अल्ट्रासाउंड में नहीं अलाउ। हाँ, अल्ट्रासाउंड में देयर आर इंसिडेंट्स जहाँ पे आपके हस्बैंड को रोक दिया जाता है कि जी अल्ट्रासाउंड आप भाई वेट करें। अच्छा, मुझे ये कल्चर बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल मेरे दिमाग से फारिग है ये कल्चर। अम्मी को ले आए साथ, भाभी आ रही है साथ, बहन आ रही है साथ, जिनसे बहुत सारी औरतों का एक पर्दा है। सम सिनारियोज में होते हैं लोग बहनों के साथ, लेकिन आप क्यों डिक्टेट कर रहे हो? यहाँ पे सबसे ज्यादा काउंसलिंग की मुझे लगता है हमारी औरतों को जरूरत नहीं है। औरतें बड़ी माशाल्लाह लर्नेड हैं, ऑनलाइन बड़ा मटेरियल हमारे पास है। यहाँ पे मैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी पूरी टीम जो बहुत अनएथिकल डीलिंग करती है, उसको ही बोलूँगी कि आप लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, माइंडसेट रीसेट की ज़रूरत है, सर्चिंग की ज़रूरत है। अपना जो पढ़ा हुआ अपना नॉलेज होगा, आई एम श्योर दे वुड नो कि औरत किस पेन से गुजर रही है एंड स्टफ। तो उनको माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। Understand that your energy is being actually absorbed by the person who's coming to you. So kindly, you know better than anybody else. I have worked voluntary as a doula. Voluntary. I was never paid for that job, Sabha. And in the night I used to go to help. Doula is again something I really want in Pakistan. इस किस्म की चीजें हों और इंशाल्लाह होंगी जब बात करेंगे। कोई डाई कल्चर है, डाई कल्चर ही बेसिकली डूला होती है। आपका बेबी वेट नीचे पड़ता है ना, तो आपसे वॉक नहीं होती, Yes. तो वो समटाइम्स दे पुश द बेबी अपवर्ड्स, जो डॉक्टर्स नहीं करती, और वो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि आप ना मसाज कराएं और ये बेबी को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा ऊपर। फिर अगर आपका बेबी बहुत ऊपर है तो वो उसको एक अच्छे पोजीशन पे ले आती हैं थ्रू मसाजेस। इन इंग्लैंड इफ आई टॉक अबाउट इट, तो ये जो है दे आर ऑब्वियसली दे आर पेड एज वेल। इट्स नॉट लाइक इट्स अ वॉलंटरी जॉब। जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी वहां पे इट वाज अ वॉलंटरी job, and वो अभी still अभी भी it's running, and what they do is they provide you mental emotional support during your pregnancy and at your birth as a birthing partners, because बाहर आपको पता है कि हर किसी की फैमिली नहीं होती है, बहुत सी हमारी यूरोपियन कंट्रीज से भी आई हुई होती हैं, to keep the translations or the translators, and bearing in mind this is all voluntary, हम उनके लिए करते थे। We used to take them to the hospital appointments once a week, 6 weeks antenatally, 6 weeks. Where were their partners? अगर कुछ के पार्टनर्स नहीं है, ऑफिस में है, वर्किंग है, बट मेजॉरिटी होती है मगर सिंगल मदर्स होती हैं, जो घरों से जिनके पास अपने घर नहीं है वो मदर्स होती हैं। ठीक है, दे आर लिविंग नॉट इन देयर होम्स, दे आर लिविंग इन मे बी रेफ्यूज में रह रही हैं वो। ठीक है, इसके अलावा किसी के हस्बैंड्स हैं, किसी के हस्बैंड्स नहीं हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं वो कंपनी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट दे डोंट डू इट बिकॉज वी आर देयर। आई एम सेइंग कि कुछ केसेस में है कि आपके पार्टनर्स हैं ही नहीं, सो व्हाट डू यू डू? You need to have somebody with you. इसके अलावा कुछ situations में ऐसा है कि husband is working, हम antenatally 6 weeks, just 6 weeks हम antenatally support provide करते हैं। उस antenatal support में अगर हमारे साथ उन्होंने किसी भी शॉप जाना है वो जा सकती है, किसी अपॉइंटमेंट जाना है वो जा सकती है, हम उन्हें बर्थिंग प्लान्स के बारे में बताते हैं, हम उन्हें पेन रिलीफ्स के बारे में बताते हैं। The training to the doulas is given by midwives. That's a 3-month course which is given to you. After that, you pass your training and your assessments and everything, and then you're qualified as a doula. ठीक है, ये मैं वॉलंटरी की बात कर रही हूँ जो हम कर रहे थे। बाहर 2 पार्टनर्स आप रख सकते हो, 2 लोग, 2 people can assist you. हमारे यहाँ तो पूरी फैमिली जाती है, which is very wrong again. और फैमिली में भी खालाएं, फुप्पाएं और नहीं मतलब क्लोज फैमिली, close family, your sisters, your sister-in-laws, नहीं, mother-in-laws, only 2 people are allowed. friends, Yes. you know, तो कोई भी जा सकता है। नहीं, birthing partners सिर्फ 2 हैं, and that is the women right to decide who she wants नहीं, to यहाँ choose. बताते हैं कि आप अपनी अम्मी को बुला लें, आपकी बहन को बुला लेंगे, बुलाएंगे किसको नहीं, आपके पार्टनर को बिल्कुल नहीं वहाँ पे। और हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप अपने पार्टनर को रखिए अपने साथ, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जिस दूसरे बंदे को, either me as a doula or your sister or your mom or nobody. Just imagine you are dealing with one of the most difficult times of your life. You are in a place that is new to you. Yes. Right? Yes. You are not familiar with the environment and surroundings. Exactly. Language barrier है। नहीं, language नहीं है। यहाँ पे तो उर्दू पता है ना। चलो पंजाबी है ना, वो भी समझ आ रही है। आपकी जो डॉक्टर है ना, वो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे आती है। ऐसे नहीं हो कि थ्रू आउट खड़ी रहेगी। ऑब्वियसली उसने और पेशेंट्स को देखना होता है। ठीक है।
तो आपको ना एक नर्सिंग टीम दी जाती है जो आपको थोड़ा-सा टेक केयर हेल्प करती है, करती कोई है। आया होगी। जो कि मैंने आपको बताया क्राइटेरिया है कि सबसे बद-अखलाक औरत ही गायनेक वार्ड में और आएगी। यही मैं आपको बताने लगी थी, हमारा अखलाक से कोई बात नहीं करेगा हाँ, आपसे। हर कोई आपसे इस लेवल की बदतमीज़ी करेगा कि आपको ट्रिगर कर दे, इस लेवल की बदतमीज़ी करेगा आपसे। that's so आप sad. ऑलरेडी पेन में हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि पार्टनर का दाखिला बैन करके जो आपको कम्फर्ट कर सकता है उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा आई बिलीव सबसे ज्यादा कम्फर्ट कर सकता absolutely. है। आपकी माँ से तो यार आपका दर्द भी देखा नहीं जा रहा होता। हाँ। एक सिनेरियो मैंने ये भी देखा हुआ है कि देयर आर नंबर ऑफ वुमेन In who are one room. इन वन रूम। Exactly. गायनिक That's वार्ड है very वो। sad. That's very वो वार्ड ऐसा है कि उसमें और भी बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं और वो सब रो धो चीख चिल्ला रहे हैं और जिसको पेन्स आ भी रहे हैं ना उसको वहीं पे खत्म हो जाएंगे। I totally That's understand. horrible. That's traumatic That's as well. Your gesture, आपका हाथ लगाने का तरीका, आपका पूछने का तरीका बड़ा मैटर करता है। अगर आपका दिन बुरा गुजरा है, काइंडली उस बुरे दिन को एक एनवेलप में डाल के साइड पे रखें, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जॉब पे जो खातून आई हैं who is expecting a child, maybe number 1, number 2, number 3, doesn't matter. Each pregnancy is different. Each birthing experience is different and your body changes. Each time your body is different. कोई 20 में करेगा, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 40 plus. Stop judging. You are not in a position to judge. If 40 plus खातून जो हैं 42 की 44 की हैं और अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है, आप as a medical staff you have no right to judge. You can always help her out to say कि you know आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकते हैं, आपने ये एहतियात करनी है, ये नहीं करनी है. I am here for you to provide the comfort. आप प्लीज अपने आप पे काम करें और ये याद रखें कि अल्लाह ने आपको अगर ये रोल दिया है ना, तो देखिए whatever role Allah has given you in your profession, we need to answer Allah subhanahu wa ta'ala. टोटली एक्सप्लॉइट किया जाता है इस रोल को, टोटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, Sad. बदतमीजियां की जाती हैं। There is one thing I would share through my experience only. I might have a different experience and you Me guys or all anybody else, yes, might have a absolutely. different experience. मुझे ऐसा लगता है कि having early marriage and early conception and early pregnancies are far better and far easier because your body is ready for it. Your body is accepting it. That's the age. जैसे हम कहते हैं ना छोटे बच्चों में कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, हेयर लाइन और बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, they heal quickly because उनकी growing age होती है। इसी तरह when a woman is young in the 20s की प्रेगनेंसीज और 30s की प्रेगनेंसीज में बड़ा फर्क होता है और फिर obviously 40s की प्रेगनेंसीज are entirely different. It's a good idea, you get married quickly, But again, you conceive kids. yeah, मैं एक नॉर्मल केस आइडियल सिनेरियोज Yeah. की बात कर रही हूँ जो Yeah. होना चाहिए और जो मुझे बेहतर फील होता है। और अगर हमारे दीन ने एक बात की है ना तो उसमें बहुत सी मसलतें वो हैं जो हमें उन्होंने बता दी हैं कि देखो ये Absolutely. फायदा ये फायदा ये फायदा है। कुछ ऐसी मसलतें भी हैं मुझे लगता है कि जो बताई नहीं गई हैं वो हम एक्सपीरियंस हाँ. करते हैं। तो जब हमारी सुन्नत में से ये बात साबित है कि यंग लड़कियों की शादी हुई और अरब में आज तक आपको पता होगा कि वो यंग उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं। अगर आपकी जल्दी शादी हो गई आप कुछ कर नहीं सकते। आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, एस्टैब्लिश्ड माय करियर आफ्टर माय मैरिज। Absolutely. Right? And each So person's it's scenario fine. is different. So I think whenever you feel, your family feels, that is the time. ये कि अल्लाह ने सबको शऊर और अकल दी है, राइट? तो उनको समझ आ जाती है कि ये लोग मेरे से गलत बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं, उनको अपने लिए टाइम निकालना है। सबसे पहले ये कि वो बात करना शुरू करें अपने आप के साथ। अपने लिए ये सोचें कि सब जो कह रहे हैं वो उनका परसेप्शन है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। देखिए हमिंग क्या होती है, मैं अभी हमिंग करूँगी ना, एक रिदम क्रिएट करूँगी ना, अगर हम यहाँ खामोशी से बैठेंगे आप भी हम करेंगी, साथ वाला भी करेगा। अच्छा इसको और ईज़ी कर लेते हैं, अगर मैंने यॉन करना शुरू कर दिया अभी, थोड़ी देर बाद It's आपको भी contagious. एग्जैक्टली एनर्जीज आर कंटेजियस। तो वो मुझे लगता है कि औरत को ना एम्पावर नहीं किया जाता हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में। वो एक्सपेक्ट कर रही होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो हमें लगता है कि बस ये भी ठीक तो नहीं वो है, तो बैशिंग शुरू कर देते हैं यही मैं कहने empowerment लगी हूँ, की ये भी नहीं जगह। ठीक, वो भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक। तो क्या होता है कि बजाय कि वो औरत अपलिफ्ट हो और एम्पावर हो, वो मजीद डाउन होना शुरू हो जाती है, डाउट करती है। उसी डाउटनेस में वो उसके बच्चे पैदा होते हैं और वो कंफ्यूज स्टेट में रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते थोड़े से। और आपने देखा है ऐसे लोगों की डिसीजन पावर कितनी बहुत लो बुरी होती है, बहुत स्लो होती है। इसमें आपने करना क्या है, सेल्फ टॉक शुरू करें, अपने आप को टाइम दें। इस बात को याद रखें कि जो अगले बोल रहे हैं वो उनका परसेप्शन है, मेरा नहीं है। मुझे अगर
कॉफी पसंद है और सबा को अगर चाय पसंद है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि यार चलो तुम भी पी लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कॉफी पी लो। मेरा ओपिनियन मेरा होना चाहिए, इनका ओपिनियन इनका होना चाहिए। अगर ये मुझे प्रेशर दे रही है कि नहीं नहीं इसको पीने से ये फायदा है, इसको पीने से ये फायदा है, ये है ये है ये बोले 6 और लोग बोले, मैं उस प्रेशर में आ जाऊंगी, राइट। हमारी इतनी सी इंपावरमेंट है कि एक चाय का कप मैं अपनी मर्जी से नहीं पी सकती हूँ। आप मुझे प्रेशर देंगी, मैं वही पीऊंगी जो मुझे 6 8 10 लोग कह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों में अपने डिसीजंस को अपलिफ्ट करना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े डिसीजंस लेके अपने आप को सेग्रीगेट करें ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। आप ये छोटा सा डिसीजन कि नहीं मैंने चाय का कप पीना है, मुझे नहीं चाहिए कॉफी, थैंक यू, ठीक है। अगर मुझे 15 लोग भी आके कहें कि नहीं तुम दूध में ये मिला के पियो तो बच्चा गोरा होगा, you're constantly listening and not talking to yourself, because you're constantly listening and you're not taking an action। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। आपने सुन लिया, अब आप उसको जब तक प्रोसेस करके निकालेंगे नहीं, वो आपकी बॉडी के साथ चिपका रहेगा, वो एनर्जी रहेगी। आपने सुन लिया, आपने अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं किया या किसी भी क्लोज फ्रेंडशिप से, किसी भी सर्कल से नहीं किया, वो आपके साथ रहेगा। अगर आपने अल्लाह से बात नहीं की, वो चीज आपके साथ रहेगी। हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट वी आर मुस्लिम्स एंड वी कैन वेंट इट आउट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इससे Yes. बड़ी कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मेरे सामने कहो जो कुछ कहना How about someone speaking to your husband, consoling him like, है। ओह गॉड, एग्जैक्टली। तुम्हारी बेटी हो गई है, हम्म, ऐसे जैसे किसी के अल्लाह माफ करे मरने का अफसोस कर रहे होते ना, एग्जैक्टली तुम्हारी बेटी होगी, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, बेटा होगा, उफ, आएगा आएगा, तेरा ऑनेस्टली वायरस आएगा, इस तरह बोल दिया जाता है। अब उससे बात हो ही नहीं रही ना, वो तो उसको साथ बिठा के, अच्छा वो तो एक्सपेक्ट करी, उसको हम कुछ नहीं कहते, इसको उसको कह रहे हैं। वो तो सुन रही है बेचारी, वो भी कोई, आप उसको जानवर समझते होंगे पर एग्जैक्टली वो इंसान है, वो एग्जैक्टली सुन रही है। और आप उसके हस्बैंड को कंसोल कर करके उसको समझा देंगे तेरे साथ कितनी बुरी हो रही है। एग्जैक्टली। एक और चीज जिस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी सबा, और वो ये है कि जब एक खातून या कोई भी बच्ची या कोई भी प्रेग्नेंट होती हैं, तो जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी रहा है विजिट करने का, और मैंने बाहर काम किया है, तो मुझे ना कल्चरल शॉक लगा यहाँ आके। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करेंगी, और अगर मैं आपको वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, तो थोड़ा सा आप वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ के बारे में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर इस सकती। कदर इट्स डिस्टर्बिंग। इवन मैं वो बातें रिपीट भी नहीं करना चाहती कि किसी और को वो अपने एक्सपीरियंस ट्रिगर हो जाए। आई एम 110% श्योर 90% खवातीन जो है ना, उन्होंने ये सारी बातें सुनी होंगी। अंडरपेड जॉब है या No, फिर it's equally paid job, ठीक है। It's So I think we should provide some sort of a counseling and teaching to the maternity staff as well, or the gynec ward as well, or whoever the doctors are there, they should provide it। किसी किस्म का constructive एक environment create करना चाहिए। You know why I'm saying that, सबा? क्योंकि बाहर हम ना सिर्फ सबसे प्यारा वार्ड जो होता है ना, वो गायनिक वार्ड है, सबसे खूबसूरत भी, सबसे काम एंड कंफर्टिंग इज द maternity ward। कैन यू बिलीव दैट? no, I cannot. यू हैव टू। एंड NHS के, यानी कि आपको फी नहीं देनी पड़ती वहां जाके। मुझे ये कभी फिक्र नहीं हुई कि मुझे अपने बच्चों के लिए पता नहीं कि अगर सी सेक्शन हुआ तो पे कैसे करूंगी या क्या, नहीं। वहां पे गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे NHS आपको फ्री प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक इट नेचुरल, बिकॉज दैट्स व्हाट बेस्ट फॉर वुमेन बॉडी। बट इफ इट्स एन इमरजेंसी, तो वो अगर सी सेक्शन भी होता है तो इतना कंफर्टिंग होता है, इतना इजी रखते हैं। दे कीप अ रिस्पेक्ट, यू नो, दे नो एक औरत का राइट है टू टेल हु हैज टू बी द बर्थिंग पार्टनर। ऐसा नहीं है कि माँ, फुप्पी, खाला। लेट मी ऐड ऑन, यहाँ पे हस्बैंड्स को 90% की बात करी, मैं 10% को नहीं बात करी, मैं 90% की बात कर रही हूँ कि हस्बैंड इज नॉट अलाउड इन द गायनिक वार्ड। अल्लाह, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम्म, जो भी आप यूके की बातें बता रही हैं, जो भी आप बाहर की वो NHS के हॉस्पिटल की बातें बता रही हैं, उसको एग्जैक्टली Opposite 180 कर दें। डिग्री पे ऑपोजिट करें ना, दैट्स पाकिस्तान। और यहाँ पे कोई मर्द इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे एक औरत औरत की दुश्मन बनी हुई है, एक औरत औरत को नहीं समझ रही। इवन वो खुद एक मदर है, वो इस जर्नी से गुजर चुकी है, एंड शी I think अंडरस्टैंड we हाउ should हार्ड talk इट इज। about it, that at least in Pakistan that should bring into the notice के कम से कम आपका birthing partner आपका husband होना चाहिए। And imagine you are raising a child, you are running a generation, and
आपके पार्टनर को ही नहीं पता कि व्हाट ट्रॉमा एंड व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू. सो सबसे पहले तो आई थिंक अगर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ये पैगाम चला जाए, जितने भी हमारे गायनिक वार्ड्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, और अगर कोई देख रहा है और अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, प्लीज डू दैट. बिकॉज I had a really huge shock when I came to Pakistan and knowing कि यहाँ पे किस किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ हॉस्पिटल्स में. ड्यूरिंग बर्थ आपको बर्थिंग पार्टनर्स का कुछ पता नहीं होता है बर्थिंग पार्टनर यहाँ पे हमारा बर्थिंग पार्टनर उस हॉस्पिटल की सबसे बदअखलाक ये देखो और बदतमीज नर्स होती है. बर्थिंग प्लानर्स होते हैं. क्या वो प्लानर्स पे काम होता है? हाँ, क्या बर्थिंग प्लानर्स आपको होते पेन हैं किलर रिलीफ्स के बारे में बताया जाता है? क्या आपको ये बताया जाता है दैट यू कैन टेक कंफर्टिंग थिंग्स फ्रॉम योर होम एज वेल टू योर yes हॉस्पिटल? yes it's दैट्स allowed. रियली गुड. मैंने बड़े काउंटलेस हॉस्पिटल्स में विजिट किया है even before giving birth to a child and then I So do decided. they provide you that comfort of coming and visiting, or it's your choice to go and check? No, The we see the thing is, labor rooms, we see the C-section You rooms, need to- and then we decide कि अच्छा ये ठीक है, हाँ, हम यहाँ पे चले जाते हैं. हाँ, तो they allow it. That's Even really आपके जो heartbeat जो Checkups lately हैं. checkups होते हैं वो आपके उस रूम में आपको लेकर जाते That's हैं really ताकि आप फेमिलियर हो जाए Yes, कि ये yes, रूम yes, होगा, yes, यहाँ पे आप आएंगे yes. और आप एकदम से एक नए रूम में आके Exactly. जैसे इंसान एक डरता comfort है, चाहिए घबराता होता है. है कि हर औरत को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. बाहर तो हर औरत को NHS ये फैसिलिटी प्रोवाइड देखो करता यहाँ है, पे segregation working है. or not working. No, there's segregation here. It's not like अब आप जैसे financially जितना आप input दोगे उतना See, आपको that's another वो sad मिलेगा. part I feel. It is. तो Because every child and every woman has a right to have the right way of giving birth and to have a peaceful, relaxing and empowering experience of giving मैं birth. below the belt लोगों और चीजों और जगहों की बात ही नहीं करी. मैं एक बड़े appropriate और highly appropriate हॉस्पिटल सिस्टम्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे बदअखलाकी उरूज पे आप है, अंदाजा करें, बदतमीजी उरूज पर है, अंदाजा करें. कमेंटिंग. और अगर उन्होंने आपको देख लिया कि आप मतलब सीधी सादी सी हैं, आपको आप कहना थोड़ा नहीं सा आ रहा नहीं तो कह बस पा फिर रही हैं और और आप नहीं बोल पा रही हैं और वो आपको अल्लाह. इस तरह के कमेंट पास करेंगे और ऐसे टॉन्ट करेंगी जैसे आपने कोई गलती कर दी है यहाँ आकर या ये बच्चा पैदा करके आपसे कोई गलती हो गई है. Are you getting my point? I am. Right from the day you have conceived a child to your labor bed, ठीक है, जहाँ पे आपने एक चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरना है, वो सारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए क्योंकि वो जो ये एक मेमोरी होती है जो आपके साथ रहती है. Okay, so now we are coming towards the end of motherhood. I have a small message that motherhood is a beautiful journey. Cherish it, enjoy it. And I would like to say that enjoy it, cherish it, embrace it. At the same time, remember that you are the one who's creating a life by the will of Allah. So make sure that you make most out of it and stay with positivity and positive people around. And don't miss your salah. It's very very important. Very important. Read Quran. और जब आप reading नहीं कर सकते, sometimes you're not in state of mind, आपको थोड़ा hallucinations हो रहे हैं, headaches हो रहे होते हैं, then listen to Quran. काम करें कुछ भी करें, कुरान लगा लें, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा. On that note, I will take your leave. Team Minecraft signing out. Khudafis.